آئیے میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم سب نکالیں گے، خداوند کے کلام مقدس میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے پہلی سلاطین اس کا 19واں باب، اس کی 19 تا 21 آیات نکالیے سب لوگ۔ پرانے عہد نامہ میں سے پہلا سلاطین 19واں باب 19 تا 21 آیات۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور سافت کا بیٹا الیشا اسے ملا، جو 12 جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا، اور وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا، اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ تو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا، کہنے لگا، مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے، پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا۔ اس نے اس سے کہا کہ لوٹ جا، میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا، اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا، اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا، انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ ٹرانسفارمیشن، چینج، تبدیلی، منتقل کرنا، آگے ڈیلیور کرنا، یہ قدرتی عمل ہے، نیچرل، لیکن ہر دفعہ نہیں، سم ٹائم۔ بہت سارے معاملات میں قدرتی نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو بناتے ہیں، سچویشنز کریٹ کرتے ہیں۔ ابھی جو ریفرنس ہم نے پڑھا، اس میں یہی کام ہوا ہے، ٹرانسفارم ہوا ہے کچھ، یہاں پر ایک ایکٹ ہوا ہے جو نہایت زبردست، نہایت طاقتور، نہایت ضروری ہے۔ ٹرانسفارمیشن میں کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی کے پروسیس میں یہ کچھ تبدیلیاں قدرتی ہوتی ہیں، ٹرانسفارمیشنز کچھ نیچرل ہوتی ہیں، خود سے ہو جاتی ہیں، آپ کرتے نہیں پر ہو جاتی ہیں۔ کچھ ٹرانسفارمیشنز ہمیں کریٹ کرنی پڑتی ہیں، کچھ کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں، کچھ سچویشنز بنانی پڑتی، کچھ کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے۔ ایک نیچرل جو ایسے ہی آپ کرتے نہیں اور ٹرانسفارم ہوتی ہیں چیزیں آگے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی بات کی میری۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک کپل ہے، خدا نے ان کو اولاد دی، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ باپ کا رویہ ہے بڑا سخت، بڑا تلخ ماں کے ساتھ۔ ان کے 5 بچے ہیں، لیکن باپ کا رویہ بڑا تلخ ہے۔ سم ٹائم وہ ماں کے ساتھ بڑا بٹر بولتا ہے، بڑا ہارش بولتا ہے، ماں کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے۔ ماں سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے، باپ فوراً اسے ڈانٹ دیتا ہے، لوگوں کا خیال نہیں کرتا کہ لوگ بیٹھے ہیں، اس کی رسپیکٹ کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا۔ جو بیٹا ہے اس کا، 5 نہیں، ایک بیٹا، اب یہ چیزیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ جو بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو جو سکھا رہے ہوتے ہیں نا، بیٹا ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے، وہ 100 میں سے 10% چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں، 90% بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ 100 میں سے 90% اڈاپٹ کرتے ہیں، 10% چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ میری ماں کو ڈانٹتا ہے، بات بات پر ڈانٹتا ہے، شاید اسی طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ اس کو پتا نہیں ہے، اس کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں اس کے اندر بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہیں، اینٹ کے اوپر اینٹ لگ رہی، ردے کے اوپر ردا لگ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی طرح سے ہوتا ہے، جینے کا طریقہ یہی ہے، جینے کا سٹائل یہی ہے، اسی طرح سے لائف گزاری جاتی ہے۔ دوسروں کو ڈپریس کر کے رکھا جاتا ہے، دوسروں کو دبا کے رکھا جاتا ہے، اور وہ اسی طرح اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی سیم سلوک کرتا ہے۔ یا آپ کی خواہش نہیں تھی ایسا ہو، اور آپ نے یہ ٹرانسفر بھی نہیں کیا، یہ ہو گیا۔ لیکن عمر کے ایک حصے میں جب وہ بچہ آتا ہے، 18 سال کا ہو جاتا ہے، 20 سال کا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ بٹر ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا تابع دار ہے، بڑا اوبیڈینٹ ہے، لیکن جب یہ کڑوا بولتا تو ایسا بولتا ہے کہ یہ سب کچھ ہی لے دے جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو کوشش کریں گے بڑی کانٹ چھانٹ کرنے کی، اس کو تراشے کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں بولنا، تب وہ مولڈ نہیں ہوگا۔ آپ کی ایفرٹس رائے گاہ چلی جائے گی۔ آپ جتنے مرضی کوالیفائڈ ہیں، آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں، لوگ کہیں گے یار ماں بھی ہوتے ہیں پڑھے لکھے نے، پتر بڑا بدتمیز ہے نادا۔ اس کی پرائس اس باپ کو پے کرنی پڑے گی، اور مجبورتاً اس ماں کو بھی کرنی پڑے گی جو ساری زندگی اس باپ کی باتیں سنتی آئی۔ ریکویسٹ ہے شادی شدہ بھائیوں سے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے بات کیا کریں، غصہ آ جائے تحمل کا مظاہرہ کریں، اگر کوئی ناراضگی ہے، کوئی خفگی ہے تو پوشیدگی میں بات کریں۔ بچوں کے سامنے کبھی اپنی بیویوں کو مت ڈانٹیں۔ اسی طرح بیویوں سے درخواست ہے۔ اب کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کو ڈپریس کر کے رکھا ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈز کے ساتھ بٹر بولتی ہیں۔ اس نے ہسبینڈ کو کہا کہ جا کے جناب آپ نے 1 کلو گوشت لے کے آنا ہے، بون لیس۔ وہ بچارے ذہن چوں نکل گیا، انہیں وچ ہڈی بھی پوا لی، اور وہ ہسبینڈ کے ساتھ لڑ پڑے گی، تانوں کیا وی کہ تسی بغیر ہڈی دے لے آنا۔ کوئی بات نہیں، اگر اس نے بیچ میں ہڈی، اس میں کوئی بری بات، ہڈی کوئی غلط چیز ہے،
सर्दी च तो लब ने कि यखनी निकले उहदे चो, लेकिन हम उसके साथ लड़ पड़ी हैं। अच्छा, इस चीज को बेटी अडॉप्ट कर रही है, उसको बेटी देख रही है, खरे अब्बे ना गल इंज ही करी दी है। हो सकता है बाप के साथ इसी तरह, वो माँ ने नहीं चाह के ये चीज बेटी में ट्रांसफर हो, उसने नहीं चाह के इसको ट्रांसफर किया जाए, ये ट्रांसफर हो गया। अब वो बड़ी बेटी अपने छोटे बहन भाइयों को भी ऐसे डील करती, जब वो ब्याह के अगले घर में जाएगी वो कोशिश करेगी कि अपने हस्बैंड को इसी तरह डील करे, लेकिन फर्ज करो जो अगला हस्बैंड अथरा निकल आया, वो तो धमाका, नतीजा रिजल्ट डाइवोर्स, रिजल्ट हस्बैंड वाइफ की सेपरेशंस। बीवी ने चाहा मैं इसको दबा के रखूं, हस्बैंड ने चाहा मैं इसको दबा के रखूं, दोनों एक दूसरे को दबाने के चक्कर में रहे, नतीजा तबाही, बर्बादी, नुकसान। लिहाजा माए बेटियों को तरबियत दें कि बेटा आपने अपने छोटे बहन भाइयों के साथ मोहब्बत से बात करनी, शफकत से पेश आना है। इसी तरह बाप अगर कभी गुस्सा आ जाए, बाप को अगर कभी फील हो कि बहुत ज्यादा गलत काम हो गया, तो तहम्मुल से बात करे, अलैदगी में अपनी वाइफ से बात करे, उसको समझाए कि उसको कहे इस प्रोसेस को इस तरह से नहीं, इस तरह से किया जा सकता था, ये और बेहतर हो सकता था, लेकिन बच्चों के सामने नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है, खादम होने के नाते दरखास्त है, अगर नहीं करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आप नहीं चाहेंगे बट नेचुरली आगे ट्रांसफर होती जाएंगी चीजें, जिसकी प्राइस उम्र के एक खास हिस्से में जाके आपको पे करनी पड़ेगी। ये तो आपके ना चाहने से हुई ट्रांसफॉर्मेशन। एक होती है उसके लिए हम बड़ी एफर्ट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि मेरे को आ जाए, हम कोशिश करते हैं ये मुझे मिल जाए। एग्जाम्पल, एक बाप है, उसने बड़ी एफर्ट की, अपनी सारी जिंदगी में जुस्तजू की और एक 10 मरले का घर बना लिया। उसके 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं। जब वो 10 मरले का घर बन गया एफर्ट के बाद, तो हर बेटे की कोशिश होगी कि यार 2-2 मरले की बजाय मुझे 4 मरले क्यों ना मिल जाए। यहां से हर बेटे की कोशिश होगी मुझे ये सारे का सारा क्यों ना मिल जाए। सब एफर्ट करेंगे इसके लिए। कोई कोशिश करेगा कि बाप को काबू करके रखे। बाप बीमार हो गया, फौरन डॉक्टर के पास ले गया। बाप हल्का सा बीमार हुआ, फौरन यखनी पिला दी, अम्मा को सूट ला दिया, अब्बा जी को सूट ला दिया। अब वो एफर्ट कर रहा है इसके लिए कि यार ये जो मिरास इसके पास है ना, ये किसी तरह मुझे मिल जाए। ये जो आगे ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, ट्रांसफर होना है, इसने इस प्रॉपर्टी ने मुंतकिल होना है, ये मुझे मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मुझे मिल जाए या सारी मुझे मिल जाए। इसके लिए एफर्ट है, वो जस्तजू कर रहा है। फिर कई भाई बीच में से ऐसे भी होते हैं कि वो दाल लगाते हैं, कोशिश करते हैं अंदर खाते कागज अपने ना करा दें, कोशिश कर रहे हैं लेने के लिए। कुछ भाई ऐसे, कुछ बहनें ऐसी होती हैं, कुछ माएँ ऐसी होती, कोशिश करती हैं कि जी 2-2 मरले बनता है, किसी एक बेटे को जरा थोड़ी ज्यादा ही मिल जाए। माएँ एफर्ट कर रही होती हैं इसके लिए। ये एक सिलसिला है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, हो रही होती है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर 5 बेटे तो राइट तो सबका 2-2 मरले पे आता है, लेकिन एक की कोशिश होती है 10 का 10 मुझे मिल जाए। हम कोशिश करते हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एफर्ट होती है, जस्तजू करनी पड़ती है। अब ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जिस्मानी है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको बाय जीन्स ट्रांसफर होती हैं, बीमारियां, अच्छाइयां, खसलतें। समटाइम कहते हैं, अब कोई शख्स अगर डॉक्टर के पास जाता है, अचानक उसका जब बॉडी टेस्ट होता है तो उसको फौरन शुगर डायग्नोज होती है। डॉक्टर पूछता है आपके दादाजी को थी, आपके अब्बा जी को थी, आपकी वालदा को थी, आपकी फैमिली में थी? वो कहेगा हाँ जी दादाजी को भी थी, अब्बा जी को भी थी। तो वो कहेगा कि ये आपको बाय फैमिली ट्रांसफर हुई है, ये आपको मुंतकिल हुई है आगे। लिहाजा अब आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, मुख्तलिफ मेडिसिन सजेस्ट कर देगा। अब ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ट्रांसफॉर्मेशन कुदरती ट्रांसफर हो गई, एक नादानिस्ता तौर पे हो गई, एक के लिए एफर्ट की गई। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है जो खुदा के हुक्म से और खुदा के फजल से होती है। इसके पीछे हुक्म भी है, इसके पीछे फजल भी है, और इसके पीछे जुस्तजू भी है, ख्वाहिश है, आरजू है कि ये मुझे मिले। बाप ये मुझे मिले, मेरे मालिक ये मुझे मिले, मेरे खुदावंद ये तू मुझे दे। उसको हमने अभी बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है। हमने अभी वाकया पढ़ा एलिया का और अलीशा का। अब एलिया एक फेमस करैक्टर है उस इलाके का। एलिया कोई हिडन पर्सनैलिटी नहीं था, और ये उस्ताद शागिर्द हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दोस्त राशिद भाई है यहाँ पे, वो मुझे कभी नहीं जिंदगी में मिले, वो कभी भी मुझे जिंदगी में मिले नहीं, वो मुझे जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। राशिद भाई अगर रेलवे ट्रैक पे फिर रहे, मैं आऊँ, अपनी जैकेट उतारूँ, राशिद पे डालूँ, राशिद को कौन चल भाई, राशिद तो कहेगा भाई मैं तुझे जानता नहीं, तू मुझे किडनैप करना चाहता है। नेवर, वो नहीं जाएगा कभी भी मेरे साथ। एक प्रोसेस हो रहा था पीछे। मुमकिन है एलिया अलीशा की मुलाकात होती हो, मुमकिन है कि खुदा अलीशा को ख्वाबों में बताता हो कि कोई शख्स ऐसा है जिसको तुझे फॉलो करना है। मुमकिन है उसको
एलिया और अलीशा एक दूसरे से दावत पे मुलाकात करते हो, इकट्ठे खाना खाते हो और एक टाइम उन्होंने स्पेंड किया हो, फिर एलिया ने उसको कहा हो मुमकिन है कि खुदा तुझे इस तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और एक दिन आ गया कि उसने अपनी चादर, अब वो 12 जोड़ी बैलों वाली जो स्टोरी है, 12 जोड़ी बैल का मतलब ये नहीं है कि अलीशा अकेला था, उसने आगे 12 जोड़ी बैल खड़े किए हुए थे और उनको चला रहा था। अलीशा एक अमीर आदमी था। 12 जोड़ी बैल का मतलब ये है कि उसके साथ और भी मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन एक जोड़ी पे वो खुद मुख्तस था, जिसको खुद वो हाँक रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि एलिया जब वहां से गुजरा, उसने अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी। चादर उसके ऊपर डालने का मतलब ये था कि एलिया अपना मसा, खुदा की वो कुदरत जो उसके साथ चलती थी, खुदा की वो हजूरी जो उसके साथ चलती थी, खुदा का वो प्लान जो उसके अंदर था, उसने अलीशा पर ट्रांसफर किया। फिर कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन ये है, कुछ खवातीन हजरात में, कुछ लोगों में, कि अपने जीते जी अगर हम अपना मसा ट्रांसफर कर देंगे तो हम क्या करेंगे, मसा तो उधर चला गया। मेरे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप अनॉइंटेड आदमी हैं। यीशु मसीह ने जब कभी किसी बीमार को शिफा दी तो क्या यीशु मसीह की शिफा देने की कुदरत कम हो गई? यीशु मसीह ने जब किसी को ब्लेस किया तो क्या उसको किसी को बरकत देने की ताकत कम हुई? वो कम नहीं होती थी, वो अपनी जगह पे मेंटेन रहती थी। आपका सोता जो कुदरत आपके अंदर है, उस कुदरत का सोता यीशु मसीह है। अगर शिफा देने की कुदरत यीशु में कम हो सकती तो फिर आप में हो सकती है। अगर किसी को बरकत देने की ताकत यीशु में कम हो सकती है तो फिर आप में भी कम हो सकती है। लेकिन अगर किसी को बरकत देने की कुदरत, शिफा देने की कुदरत, रहम करने की कुदरत, तरस खाने की कुदरत, बहाल करने की कुदरत यीशु में कम नहीं हो सकती तो फिर वो आप में भी कम नहीं हो सकती। अब हम ये सोचते हैं कि नहीं, अभी नहीं ट्रांसफर करना, अभी ट्रांसफर नहीं, ये मरने से पहले ट्रांसफर करेंगे। खुदा अपने खादमों को बता देते, एलिया को पता था कि मेरे साथ क्या होना है, उसका एक वक्त मुकर्रर था। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती कि वो जो कुछ करने लगता है वो पहले अपने खादमों को बता देता है, अपने दोस्तों को बता देता है, अपने मोहब्बत करने वालों को बता देता है। अब वो जब प्रोसेस हुआ, उसने उस चादर को उसके ऊपर डाल दिया। उसका मतलब ये था कि खुदा का मंसूबा दूर अंदेशी का है। खुदा के प्लान में और भी बहुत से लोग शामिल हैं, खुदा के प्लान में और भी मंसूबे शामिल हैं। एलिया ने इस जमीन पर जब 8 मोजज़े कर दिए, उसका टाइम पूरा हो गया, वो इस जमीन से रुखसत हो गया। खुदा का मंसूबा था कि ये काम होते रहें। खुदा का मंसूबा ये था कि खुदा का जलाल जाहिर होता रहे। खुदा का मंसूबा ये था कि लोग खुदा की कुदरत से मुस्तफीद होते रहें। खुदा का मंसूबा ये था कि खुदा का हाथ उसके लोगों की तरफ बढ़ा रहे। उसने फिर अलीशा के जरिए ये काम करना शुरू कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन हुई और आगे बढ़ते गए। एक और जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन इस जमीन पर हुई है। अगर हम याकूब की लाइफ को स्टडी करें, उसके पीछे एक एफर्ट है। उसकी माँ को पता है कि जो याकूब है, मेरा जो शौहर है, वो याकूब की मदर को पता है कि जो मेरा शौहर है इसहाक, वो एक अनॉइंटेड आदमी है। वो उसके खुदा को जानती है, वो उसके बाप दादा के खुदा को जानती। वो उसको एक बात पता चल गई है कि जो इसहाक है, इसका खुदा कुदरत वाला खुदा है। इस जमीन पर और भी बहुत सारे माबूद मौजूद हैं, और भी बहुत सारे खुदा मौजूद हैं, लेकिन इसहाक का खुदा एक मुनफरिद खुदा है जो समुद्रों को 2 टुकड़े करता है, अपनी कौम को मिस्र से बचाने की, फिरौन की कुदरत से बचाने की ताकत रखता है। इसका खुदा एक यूनिक गॉड है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कोई खुदा शायद सिर्फ बारिश बरसाने का खुदा कहलाता है, कोई गोद हरी करने का खुदा कहलाता है, कोई शिफा देने का खुदा कहलाता है, लेकिन इसहाक का खुदा जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। ये गोद भी हरी करता है, ये बारिश भी बरसाता है, ये निजात भी देता है, ये बहाल भी करता है, समुद्रों को 2 टुकड़े भी करता है और अपनी कौम को गुलामी से निकाल कर भी ले जाता है। उसको इस बात का इल्म है। उसने कहा कि जो खुदा इसहाक के साथ चलता है वो मेरे बेटे के साथ भी चलना चाहिए, याकूब के साथ भी चलना चाहिए। उसने एफर्ट की, उसने याकूब को ब्लेसिंग दिलवाई। जुस्तजू हुई, याकूब को ब्लेसिंग मिली। याकूब को मिली थी या नहीं मिली थी? वो एक जबरदस्त बिलीवर कहलाया। बाइबल के सुपर हीरोज में से एक हीरो है वो। ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एफर्ट हुई। क्या हमारी लाइफ में हमारी माओ ने कभी ऐसी एफर्ट की है? बाप रोजाना 2 घंटे बैठकर खुदा की हुजूरी में आता है। मैं बेटे को कहूँ, बेटा जा, तू भी उस खुदा की हजूरी में बैठ। तेरा बाप जिसकी हजूरी में बैठता है वो एक जबरदस्त खुदा है। क्या माँ ने कभी बेटी को तरबियत दी है कि बेटी जा अपने बाप के साथ खुदा का कलाम पढ़? जिस खुदा का कलाम वो पढ़ता है वो लामुबद्दल खुदा है, उसके वादे बड़े हैं, वो सादिकुल कौल और सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है।
माओ ने कभी बेटियों को तरबियत दी या कभी इस तरह की एफर्ट की हो, कभी इस तरह की जुस्तजू की हो, शायद ही कई नजर आया हो देखने में। एक मौजूदा हालात में इन करीब करीब की सदियों में एक एग्जाम्पल नजर आई है बड़ी खूबसूरत। दिनाकरन का बेटा पॉल दिनाकरन, एक जबरदस्त खिदमत उस बाप ने अपने बेटे को ट्रांसफर की और उस जबरदस्त खिदमत को और ज्यादा जबरदस्त कर दिया उसके बेटे ने। मेरे सुनने में आया, मैंने इस चीज को वेरीफाई नहीं किया लेकिन सुना है किसी खादम से कि जो दिनाकरन था उसके 15 या 16 प्रेयर टावर्स थे और अब मोर देन 100 प्रेयर टावर्स उनके हैं। वेरीफाई हो गया 128 प्रेयर टावर पॉल दिनाकरन। इसका मतलब यह है कि उसके खुदा की, उसके बाप के खुदा की कुदरत ने बेटे की जिंदगी में काम किया तो 128 प्रेयर टावर बन गए हैं। माँ ने एफर्ट की, याकूब को बरकत ट्रांसफर हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। माँ के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है। ऐसे नहीं कहते कि माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है, पहली यूनिवर्सिटी, पहला स्कूल, पहली कॉलेज एक माँ की गोद है। जब यहूदी औरतें कंसीव करती हैं तो बताया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कलाम को पढ़ती हैं और बुलंद आवाज से पढ़ती हैं, लाउडली पढ़ती हैं। उसके बाद उनके इर्द गिर्द कुछ इस तरह के एक्ट नहीं होते जो नेगेटिव एक्ट्स कहलाते हैं। वो कलाम को क्यों पढ़ती हैं? वो इस बात पर ईमान रखती हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो कुछ पढ़ेंगी, हम जो कुछ करेंगी, हम जो कुछ कहेंगी वो हमारे बच्चे में इम्पार्ट होगा। हमारी खवातीन कंसीव करती हैं तो पॉलर पे जाना पसंद करती हैं, शादियों पे भाग भाग के जाना पसंद करती हैं और इस तरह के नेगेटिव, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं ये मौजूदा सिचुएशंस हैं जो रीडिंग्स में आई हैं। बात बात पे झगड़ना पसंद करती हैं, नाराज होना पसंद करती हैं और घर के मर्द भी बात बात पे उनसे झगड़ना पसंद करते हैं। जब वो झगड़ेंगे जाहिर सी बात है उसको भी गुस्सा आएगा, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगी वो। उसका इम्पैक्ट उस बच्चे पर आता है, आने वाली नस्ल पर आता है। वो बच्चा आपकी गोद में है या आपकी कोख में है, मैं आपको ये चीज एजुकेट करना चाहूंगा। उस बच्चे को खुदा के कलाम की तरफ रागिब कर दें। कायनात की सबसे जबरदस्त ताकत है ये, दुनिया की सबसे जबरदस्त पावर है ये खुदा का कलाम। इस कलाम पर भरोसा करके, इस कलाम पर चल के वो दुनिया की किसी भी किस्म की सिचुएशन को मोड़ सकता है, मोल्ड कर सकता है। हम नई बच्चे को इस राह पर, इस रास्ते पर लेकर आते। लिखा है बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होके भी उस राह से हरगिज ना फिरेगा। हमें तरबियत करने की जरूरत है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को इस बात को लेकर अवेयर होने की जरूरत है कि आप लोगों के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप लोगों के जरिए चीजें ट्रांसफर होती हैं आगे। एक और जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है मूसा की और यशुआ की। खुदा नहीं चाहता था कि सिलसिला मूसा तक आकर डिस्कनेक्ट हो जाए, खत्म हो जाए। खुदा उस कौम को मिस्र से जब लेके निकला तो उसका प्लान था कि उसको मुल्क मौत तक लेकर जाए। जब मूसा का जमीनी सफर मुकम्मल हुआ तो ये खिदमत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हुई यशुआ पर। उसने इसको निभाया दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ। बाइबल के सुपर हीरोज में से एक जबरदस्त नाम यशुआ का मौजूद है। मूसा ने उसको एजुकेट किया, मूसा ने उसको गाइड किया, मूसा ने उसको ब्लेस किया, जिस तरह से एलिया ने एलीशा को ब्लेस किया, जिस तरह से इसहाक ने याकूब को ब्लेस किया। जब उसके ऊपर वो ब्लेसिंग ट्रांसफर हुई, वो मसा ट्रांसफर हुआ, वो बरकत ट्रांसफर हुई, देन यशुआ जो था उस कौम को मुल्क मौत तक ले जाने में कामयाब हुआ था। एक मुल्क हमारे लिए भी पड़ा है, जिस मुल्क में वो लोग गए हैं वो मुल्क इस जमीन पर मौजूद है। खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा, आने वाले वक्तों में मुमकिन है कि उसका एक जर्रा भी बाकी ना बचे। लेकिन जिस मुल्क में हम ट्रांसफर होने वाले हैं वो हमेशा से हमेशा तक रहने वाला है, वो कभी खत्म नहीं होगा, उसका कोई एंड नहीं है मेरे अजीजों। जिस शहर में हम बसने को है वो नहायत खूबसूरत और कीमती शहर है। जुस्तजू उसके लिए होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, यकीन करें, बिलीव करें। जिस प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को कत्ल करता है, भाई बहनों के खिलाफ हो जाता है, बहनें भाइयों के खिलाफ हो जाती हैं प्रॉपर्टियों के क्लेम के लिए, यकीन करें आपसे आने वाले के बाद पता नहीं वो किधर जाएगी। उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई मुकाम, कोई मंजिल नहीं। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपको आसमान से मिलनी है वो हमेशा ही आपके पास रहनी है, आपसे उसको कभी कोई नहीं छीन सकेगा। वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी मलकियत है। वो कीमती लिबास, वो कीमती शहर, वो बलोर का घर, वो आपकी प्रॉपर्टी है। दुनिया का कोई जज, दुनिया का कोई वकील, दुनिया का कोई वजीर, दुनिया का कोई सदर अपनी सारी जिंदगी लगा दे, सारा पैसा लगा दे कि वो प्रॉपर्टी आपसे छीन ले, वो आपसे छीन ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने साइन करके आपको दी। उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत है।
आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके जाएं अपने बच्चे के नाम, अपने बच्चे को एजुकेट करके जाएं कि बेटा मेरा खुदा सारी जिंदगी मेरे आगे आगे चला है, मेरे खुदा ने मेरे रास्ते तैयार किए हैं, मेरे खुदा ने मेरी राहों को हमवार किया है, उसने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है। मुझे सर्दी में जब सर्दी सताती थी तो वो मुझे पहनने के लिए गर्म लिबास देता था, मुझे जब भूख सताती थी मुझे खाने के लिए रोटी देता था, मुझे इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई मैंने खुदा के हाथ को अपनी ज़िंदगी में काम करते देखा है। मेरे बेटे तुझे भी उसी खुदा के पीछे चलना है, इसको प्रोसेस को अमल में लेकर आए, अपनी बेटी को ट्रांसफ़र करें, अपने बेटे को ट्रांसफ़र करें। एक और ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन बाइबल के मुताबिक जो कि दाऊद से सुलेमान को हुई। एक ज़बरदस्त वॉरियर था, एक ज़बरदस्त सूरमा था दाऊद, एक ज़बरदस्त काम खुदा ने लेना था और वो काम ये था कि हैकल बनाई जानी थी। जब दाऊद ने कहा कि इसको मैं बनाऊंगा, खुदा ने उसे रोक दिया, खुदा ने उसके हाथ को रोक दिया। अगर दाऊद इस ट्रांसफॉर्मेशन के अमल को प्रोसेस में ना लाता, सुलेमान को ट्रांसफ़र ना करता, वो खुदा के मंसूबे में हर्डल का बाइस होता। लेकिन उसने जब अपने बेटे को ये काम ट्रांसफ़र किया तो खुदा ने उसके बेटे से ये काम लिया। मुमकिन है कि खुदा के मंसूबे में 200 प्रेयर टावर हों पॉल दीनाकरन के लिए, 250 हों, खुदा ने उसके बाप से वो चीज़ ली और अगले को ट्रांसफ़र की, उससे खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, दुनिया में निजात का काम बढ़ा, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ी। एक और ज़बरदस्त ट्रांसफ़र, नहायत खूबसूरत ट्रांसफ़र जिसका कोई नेमल बदल नहीं, जो यीशु मसीह से कलीसिया को हुई है। आपको जो मसा ट्रांसफर हुआ है वो डायरेक्ट यीशु मसीह से ट्रांसफर हुआ है। आपको जो बरकत ट्रांसफर हुई है वो डायरेक्ट यीशु मसीह से आपको ट्रांसफर हुई है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहायत उत्तम, नहायत शानदार, नहायत जोरावर है, नहायत ही जबरदस्त है। मैंने शुरू में एक बात कही, हम एक जगह पे, मुझे आज भी याद है, जब इबादत होती थी गद्दाफी स्टेडियम में खुदा के खादम अलेक्जेंडर साहब की, तो कहा जाता है कि एक खातून उधर आती थी, वो अपनी राइट साइड की सीट भी रिजर्व कर लेती थी, लेफ्ट साइड की भी कर लेती थी, उधर किसी को नहीं बैठने देती थी। उससे जब पूछा गया आप क्यों नहीं बैठने देती अपने राइट लेफ्ट पे, वो कहती जी मैं पे करती हूँ इसका। वो हमने कहा जी पे तो करती लेकिन बैठने क्यों नहीं देती? कहती आई एम अनॉइंटेड और मैं नहीं चाहती कि कोई गैर निजात याफ्ता मेरे साथ बैठ जाए। समझ से बाहर है कि वो कैसी अनॉइंटेड थी, वो कैसी निजात याफ्ता थी। यीशु की तो कोशिश ही यही होती थी कि जितने गैर निजात याफ्ता सारे ही मेरे साथ बैठ जाए। गैर निजात याफ्ता आपके साथ बैठेगा तो प्रोसेस होगा ना, गैर निजात याफ्ता आपसे हाथ मिलाएगा तो प्रोसेस होगा ना। याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट किसी जमाने में यह था कि जब कोड़ी किसी चीज को छूता था तो वो चीज नापाक हो जाती थी, जब नापाक औरत किसी को टच करती थी तो वो नापाक हो जाता था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मजीद ब्यूटिफाई किया यीशु मसीह ने। कोड़ी यीशु को छूते थे तो पाक हो जाते थे, बीमार औरतें यीशु को छूती थी तो पाक हो जाती थी। याद रखिए, कोड़ी, गुनहगार, नापाक लोग आपको छुएंगे, आप कभी नापाक नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऊपर जो मसा है वो यीशु का मसा है, और यीशु का मसा आपको कभी नापाक नहीं होने देगा। आपको खुदा की कुदरत कभी फेल और फ्लॉप नहीं होने देगी, बस शर्त यह है कि वो कुदरत यीशु मसीह की हो। हमने अक्सर ये सुना कि ये अदा प्यो बाबा सी, वो चीज़ां ओदी जान ही नहीं सी निकलन दिंदियां, वो चाहदियां सन कि ट्रांसफर करके जाए अगे। अच्छा, वो चीजें एफर्ट करती हैं कि ट्रांसफर करके जाए, बाबा जी की भी जान नहीं निकल रही। शरीर को इस चीज की फिक्र है, इबलीस को इस चीज की फिक्र है, पर कलीसिया इस चीज की फिक्र में क्यों नहीं है? वो अपना नेटवर्क ब्रेक नहीं करना चाहते, वो अपने सिस्टम को रोकना नहीं चाहते, वो चाहते हैं ये सिस्टम बढ़ता जाए, चलता जाए। कलीसिया को इस चीज की फिक्र क्यों नहीं है कि यीशु मसीह की अंजील फैले और फैलती ही चली जाए? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पर आयद होती है। याद रखिए, जो मसा यीशु पर था वही मसा आप पर है। ये मसा फर्क नहीं है। यीशु की शिफा देने की कुदरत फर्क और आपकी शिफा देने की कुदरत फर्क नहीं है। यीशु की किसी को बहाल करने की कुदरत और आपके किसी को बहाल करने की कुदरत फर्क नहीं है। अगर ये बात है तो फिर इसका मतलब ये कि खुदा में डिस्क्रिमिनेशन है, खुदा फर्क रखता है। खुदा किसी में फर्क नहीं रखता। जिस तरह से यीशु सबको प्यार करता था, खुदा चाहता है हम भी उसी तरह से सबको प्यार करें। जिस तरह यीशु अपने अंदर माफ करने का जज्बा रखता था, खुदा चाहता है कि हम भी माफ करने का जज्बा उसी तरह से अपने अंदर रखें। जिस तरह से यीशु लोगों को बहाल करता था, खुदा चाहता है कि हम भी उसी तरह से सब लोगों को बहाल करने की कुदरत अपने अंदर रखें। यीशु ने यह सब कुछ उस मसा के नीचे रहकर किया जो खुदा ने उसके ऊपर कायम किया था, और वही मसाज हमारे ऊपर भी है। हमारे किसी को बहाल करने की कुवत, हमारे किसी को शिफा देने की कुवत, हमारे किसी पर तरस खाने की ताकत यीशु से फर्क क्यों है? क्योंकि वजह सिर्फ यही है कि हम यीशु मसीह की हुजूरी में उस तरह से बैठते नहीं।
ہم نے خدا کی قدرت کو، خدا کے جلال کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. ہم نے خدا کی صداقت کو، خدا کے فضل کو اس طرح سے قبول نہیں کیا. لیکن جیسے ہی ہم خدا کے فضل کو، خدا کی قدرت کو، خدا کے جلال کو، خدا کے مسا کو سیم اسی طرح ایکسیپٹ کریں گے جس طرح سے یسوع نے کیا تھا، ہماری طاقتیں بھی اسی طرح سے ہو جائیں گی. ہم نے اعمال کی کتاب میں کئی دفعہ پڑھا کہ رسولوں نے کسی کی ٹانگوں، جو بچپن کا لنگڑا تھا اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا. رسولوں نے کسی کو اس طرح سے شفا دی، مردوں کو زندہ کر دیا. ہم نے متعدد اس طرح کی اگزامپلس خدا کے کلام میں پڑھی اعمال کی کتاب میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اس مسح کو، اس قدرت کو، اس جلال کو جو یسوع کے اوپر تھا انڈرسٹینڈ کر گئے تھے، اور وہ اس بات کو مان گئے تھے کہ جو مسح یسوع پر ہے وہی ہمارے اوپر بھی ہے. آپ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. آپ لوگوں کو معاف کریں جس طرح سے یسوع کرتا تھا. آپ خدا کی حضوری میں ٹائم سپینڈ کرنا شروع کریں. پلس اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے. زمین ایک باپ نے بنائی، ایفرٹ کر کے گھر بنایا، وہ 5 بچوں میں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا. وہ 5 کے بعد 2 مرلے سب کو ٹرانسفر ہوگا، اور اس کے بعد اب ان 2 مرلوں کے بعد ان کے پھر 5 بچے ہو گئے تو کتنی وہ کسی کو بانٹیں گے؟ 20 گز. کہانی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آگے پھر ان کے 5 ہو گئے تو سلسلہ ختم. کرائے دے مکان، گرویاں دے مکان، سلسلے زیرو. لیکن جو مسا یسوع مسیح کا آپ کے اوپر ہے، جو برکت یسوع مسیح کی آپ کے اوپر ہے، آپ جتنا ٹرانسفر کرتے جائیں گے وہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ خدا کا ہاتھ اس قدرت پر ہے. خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں، خدا کا جلال آپ کی زندگی میں، یہ وہ برکت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس نے ملٹی پلائی ہوتے چلے جانا ہے. اور وہ برکت جو ہے، جو باپ نے بنائی اپنی ایفرٹ سے اور ہم نے اپنی جستجو کر کے حاصل کی، وہ ڈیوائیڈ ہوتی جائے گی اور ختم ہوتی چلی جائے گی. لہٰذا میرے عزیزو، اس چیز کو اپنی زندگی میں نصب العین بنا لیں. آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو ٹاپ پرائرٹی پر لے جائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس چیز کو لے کر ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بیٹا جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. وہ ابراہم کا خدا ہے، وہ اسحاق کا خدا ہے، وہ یعقوب کا خدا ہے، وہ 12 رسولوں کا خدا ہے، وہ اس کلیسیا کا خدا ہے، وہ نجات کا موجد اور منبع ہے. وہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت اور طاقت اپنے اندر رکھتا ہے. وہ مجھے اگر سنبھال سکتا ہے اس دنیا میں، وہ تجھے بھی سنبھال سکتا ہے، وہ تیری نسلوں کو بھی سنبھال سکتا ہے. یہ چیز امپارٹ کر دے بچوں کے اندر، ٹھوس دے ان کے دماغوں میں، نکلے نا ان کے دماغ سے یہ بات کبھی. وہ کبھی کسی غلط کام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگے، فوراً ان کو یہ بات یاد آ جائے کہ ان کا خدا ان کے ساتھ کھڑا ہے. وہ غلط کام صرف اس لیے کرنے لگے کہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. ان کے ذہن میں یہ بات فوراً آ جائے کہ میری ضرورت پوری کرنے والا میرا خدا ہے، لہذا میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، میں ابلیس کی آواز نہیں سنوں گا، میں شریر کی بات پر لبیک نہیں کہوں گا، میں اپنے خدا پر ایمان رکھ کے کھڑا ہوں گا. میں جس بات پر ایمان رکھتا ہوں نا، اگر نبی کے لیے آسمان سے کوے گوشت اور روٹی لے آتے تھے، اڑتے ہوئے آتے تھے، گوشت بھی لے آتے تھے، روٹی بھی لے آتے تھے. اگر خدا کی قوم کے لیے آسمان سے گوشت نازل ہو سکتا ہے تو ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آسمان سے پیسے بھی نازل ہو سکتے ہیں. یہ خدا کر سکتا ہے. 2 نمبر پیسے نہیں ہوں گے، 1 نمبر ہوں گے. خدا دے رہا نا تو 1 نمبر ہوں گے. اس کے پیچھے عید مبارک نہیں لکھا ہوگا. پیور ہوں گے، جہاں مرضی چلا دیں، جدھر مرضی ان کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ وہ خدا نے دیے ہیں آپ کو. خدا کبھی کسی کو 2 نمبر برکت نہیں دیتا، جینوئن برکت دیتا ہے، اوریجنل برکت دیتا ہے. میرے عزیزو، فقط اس چیز کو آگے ٹرانسفر کرنے، میں آج آپ کو اس چیز کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. جس کے پاس نہیں ہے، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. میرے بیٹے، میری بیٹی، میری بہن، میرے دوست، یسوع مسیح سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میری ایج اس وقت تقریباً 44 ایئرز ہے، 44 سال. یسوع کو قبول کیے تقریباً 30 سال ہو گئے. مطلب زندگی کے اس عرصے میں، ان 30 سالوں میں زندگی کے، میں نے کئی ورائٹیاں یسوع کے ساتھ لگائی ہوں گی. میں نے کئی بار دغا بازی کی ہوگی زندگی کے ان 30 سالوں میں. کئی دفعہ میں نے یسوع کو ڈاج کرایا ہوگا، دھوکہ دے دیا ہوگا. دیا ہوگا کیا؟ ڈیفینیٹلی دیا ہے. میں کنفیس کرتا ہوں کہ کیا ہے میں نے یہ خدا کے حضور میں، اور اس بات پر ایمان رکھ کے کنفیس کرتا ہوں کہ آگے نہیں کروں گا. خدا مجھے غالب آنے کی قوت اور قدرت دے گا. 44 سال میری عمر، ان 30 سالوں میں کئی دفعہ مجھ سے خطائیں اور گناہ سرزد ہوئے. میں نے کئی بار خدا کے ساتھ بے وفائی کی ان 30 سالوں میں، لیکن 44 سالہ زندگی میں خدا میرے ساتھ آج تک کبھی بے وفائی نہیں. اس نے مجھے بھر پیٹ کھانا دیا، پہننے کے لیے لباس دیا، رہنے کے لیے جگہ دی، میری ہر ضرورت کو پورا کیا. مجھے جو کچھ درکار تھا خدا نے مہیا کیا. خدا اس قدر زبردست اور زوراور ہے میرے عزیز. تو آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اس بات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے، اس بات پر توکل کرتے ہوئے کہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قوت، قدرت اور طاقت رکھتا ہے.
ہم اس بات کو خدا کے سامنے رکھیں گے